Hello everyone, good morning, standard 12 and welcome to live class again. Because all of you know that there is a COVID spreading again and we have one more unwanted guest now, it's named Omicron. All of you know about that. That's why we're starting your live class again, and today I'm going to teach you your Vistas book, chapter number 6. And I taught you the half of the chapter in your offline classes when you come to the school regularly. It was chapter 6 on the face of it. Now today I'm going to tell you the summary of the chapter on the face of it. And before I tell you, I've started to tell you the summary. Let me tell you first the characters of the story. The main character of the story there are 3 characters of the story, and the main character of the story are just 2. One, Mr. Lamb, an old man, the owner of a garden. And second, we have Derry, a small boy, nearly 14 years old. Okay, nearly 14 years old, who is very withdrawn and defiant. I told you the meaning of both of those words, defiant and withdrawn, in the class. That's why. Well, I will tell you again. Whose face is burnt? Whose half face is burnt? Who's Derry? A small boy, nearly 14 years old, and his half face was burned. Okay, so there's one more quality in this little boy, small boy. He's very withdrawn. I told you now, withdrawn. And another, defined. Okay, I will tell you the meaning of this. 2 different words. These are the characters of the boy. Withdrawn means a person who does not like to talk to others. A person who doesn't like to talk to others. Okay, जो दूसरों से बातें करना पसंद नहीं करता उसे withdrawn कहते हैं. इसको पसंद. We have another word for it, introvert. You must listen about the word introvert. Okay, introvert. And the defiant is, I told you the meaning, just try to remember defiant, who does not follow the rules and regulations of any society, of any government, of the country. Okay, that is defiant. Who does not follow rules and customs. Who does not follow the rules, custom, traditions in a country. Okay, that is a defiant person. So Derry was a defiant person, and Derry's mother who was very worried about her son Terry. Okay, because it was not an adult person, it was a very small boy, just 14. She was very worried about her son. So let me tell you today the summary of the chapter. I taught you half of the chapter in offline classes, but today also, as we will try a new application. I don't remember its name now, but we are going to start a new application this time for your live classes. And you remember the last time I taught you in teachment application. Okay, so today we have note application, and no teachers knows how to use it. That's why we are teaching you on the YouTube, just making videos. That's why I'm going to tell you the summary of the chapter today. Okay, as we get application, we will start to teach you of the application, the chapter and its question answers. Okay, and the explanation of the chapter. So today there's a boy, Mr. Lamb. There's a boy, Mr. Derry, and a person is an old person, Mr. Lamb. Okay, I told you about this. So Lamb is the owner of a garden. Lamb का एक गार्डन है, तो वो गार्डन में बैठा रहता है, और किसी वर्ल्ड वॉर में जो भी उसका आसपास का वर्ल्ड वॉर हुआ था उस दौरान, उस वर्ल्ड वॉर में जो लैम्ब की एक लेग है वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, ब्लोन अवे मीन्स टूट गई थी या डिस्ट्रॉय हो गई थी. दैट आई टोल्ड यू ऑन द
ऑफलाइन क्लास। ओके, तो उसकी एक जो लेग थी उसने टिन की लेग लगवा रखी है लैम्प ने। मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है, किस लिए? क्योंकि ये कंफर्म करने के लिए कि वीडियो रुक तो नहीं गई। ओके बच्चों, तो उसकी एक टांग जो है टिन की है, लेकिन फिर भी जो लैम्प है, द ओल्ड मैन वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, वो बहुत ही पॉजिटिव है, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है चीज़ों को देखने का। मगर जो डैरी है, हुज डैरी हुज हाफ फेस इज बर्न्ड, उसका आधा चेहरा जला हुआ है या जल गया है, वो बहुत ही निगेटिव है, उसमें इन्फीरियोरिटी आ गई है। यू नो इन्फीरियोरिटी, द अपोजिट वर्ड फॉर सुपीरियोरिटी। ओके, उसमें हीन भावना, जिसे हम कहें इन्फीरियोरिटी आ गई है। वह उसका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, एटीट्यूड है, वो बहुत ही नेगेटिव हो गया है। वो चीज़ों को किस तरह से देखता है? विद नेगेटिविटी। तो मिस्टर लैम्प का जो एटीट्यूड है वो एकदम डिफरेंट है, एकदम अगेंस्ट है उस छोटे से बच्चे के हिसाब से। ठीक है, तो एक दिन मिस्टर लैम्प अपने गार्डन में बैठे रहते हैं एज यूजुअल, जैसे कि हमेशा बैठते थे। तो वहाँ डैरी समझता है कि यहाँ कोई नहीं है, तो डैरी वहाँ आता है घूमते हुए, उसको लगता है कि यहाँ कोई नहीं होगा, एंड ही ट्राई टू गेट इनटू द गार्डन। गार्डन के अंदर घुसने का प्रयास करता है, लेकिन अचानक से उसे मिस्टर लैम्प दिखाई देते हैं, एंड ही वाज सडनली टेकन अबैक। टेकन अबैक मींस, आई टोल्ड यू इन द ऑफलाइन क्लासेस, टेकन अबैक मींस अमेज्ड, है ना, एकदम से चौंक जाता है, भौचक्का हो जाता है। तो मिस्टर लैम्प क्या कहते हैं कि आप घबराओ ना बेटे, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, लेकिन डैरी क्या कहता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ कोई हो भी सकता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट समवन विल बी हियर इन द गार्डन। ओके, तो फिर उनके बीच क्या क्या बातें होती हैं। तो डैरी वहाँ चला जाता है। फिर डैरी क्या कहता है, अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि मैं यहाँ कोई थीवरी या थेफ्ट, चोरी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी चोरी के पर्पज से नहीं आया सर, मैं तो सोचा कि यहाँ कोई नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई केम हियर इन द गार्डन टू जस्ट टेक ए वॉक, सिर्फ घूमने के लिए ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो डैरी जैसे, तो मिस्टर लैम्प डैरी को अचानक से क्या कहते हैं कि माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान रखना, क्योंकि आप उनको स्मैश कर सकते हो। व्हाट इज स्मैश? स्मैश मीन्स कुचल देना। ठीक है, आप उनको स्मैश कर सकते हो, या आप खुद भी गिर सकते हो, यू कैन फॉल अवे। ठीक है, फॉल डाउन, आप भी गिर सकते हो, ये कहता है। तो मिस्टर लैम्प डैरी से काफ़ी बातें करता है, लेकिन डैरी हर एक बात में अपनी निगेटिविटी ढूंढ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर लैम्प डैरी से पूछता है कि हियर इज अ गार्डन एंड व्हाट कैन यू सी इन द गार्डन, तो डैरी क्या कहता है? जस्ट वीड्स। व्हाट इज वीड्स? वीड्स मीन्स अनवांटेड ग्रास। अनवांटेड ग्रास, ऐसी घास जिसको हमने नहीं चाहा था, अनवांटेड वाइल्ड ग्रास, अनचाही जंगली घास। अब देख लो कितना डिफरेंस है। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि वी कैन कॉल इट गार्डन ऑल्सो, हम उसे गार्डन भी कह सकते हैं, हमें उसे वीड्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। ओके, फिर डैरी मिस्टर लैम्प को डिफरेंट टाइप्स की अपनी स्टोरी बताता है, चीज़ें बताता है कि मेरा फेस, आप शायद मेरे फेस के बारे में सोच रहे होंगे, अपनी कंसेप्शन, अपनी धारणाएं बना रहे होंगे कि कैसा होगा। तुम सोच रहे होंगे कि इट्स अ पुअर बॉय, एक बेचारा लड़का है, इसका फेस खराब है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं इस तरह का नहीं हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनी टाइप ऑफ सिंपैथी फ्रॉम एनीबॉडी, मुझे किसी से किसी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, ये डैरी कहता है मिस्टर लैम्प को। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी बराबर हैं, चाहे तुम हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, मैं तो सभी चीज़ों में बराबर इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें किसकी बनाई हुई है? किसकी? परमात्मा की। ओके, सभी चीज़ें गॉड्स, भगवान की बनाई हुई है, इसलिए मैं सब चीज़ों में बराबर इंटरेस्ट लेता हूँ, चाहे किसी का फेस जला हुआ है, चाहे कुछ जला हुआ है। लेकिन डैरी क्या कहता है? डैरी कहता है कि तुम्हारा फेस नहीं जला है, इसलिए तुम नहीं समझ सकते, हम डिफरेंट है, हम एक जैसे नहीं है। तो मिस्टर लैम्प क्या कहते हैं? तो जैसे डैरी बताता है मिस्टर लैम्प को कि आप वी आर नॉट द सेम, हम एक जैसे नहीं हैं, मेरा जो फेस जला हुआ है और आप ठीक हो। तो मिस्टर लैम्प से बताता है कि आई हैव माई लेग ब्लाउन अवे,
मेरी जो टांग है ब्लोन अवे हो गई थी या वो टीन की है। तो इतने में डैरी फिर उसमें एक्साइट हो जाता है, चीज़ें पूछने लगता है डैरी। तो जैसे ही डैरी इंटरेस्ट लेना शुरू करता है मिस्टर लैम की टांग में, तो मिस्टर लैम से अपनी सारी स्टोरी बताते हैं बेटा कि वर्ल्ड वॉर में मेरी टांग में जो है ये इट वॉज ब्लोन अवे, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई अ बॉम्ब, एक बॉम्ब गिर गया था जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो सारी चीज़ बताता है। तो डैरी पूछने लगता है सारी चीज़ें मिस्टर लैम से। तो डायरेक्टली जाने दोनों जो हमारी स्टोरी के जो गाइज हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसमें मिस्टर डैरी में और मिस्टर लैम में। तो मिस्टर लैम उससे काफ़ी ट्राई करते हैं उस बच्चे को पॉजिटिव उसको वे देने का, लाइफ को पॉजिटिवली देखने का, मगर वह पॉजिटिव होने का नाम भी नहीं लेता है। तो मिस्टर लैम उससे बताते हैं कि मेरे पास तो सभी लोग आते हैं, सभी को मैं एक नज़र से देखता हूँ, सभी लोग बराबर होते हैं, कोई किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन डैरी उसकी बात सुनकर क्या कहता है बेटा? डैरी कहता है कि ये मत समझना कि मुझे किसी ने ये स्टोरी नहीं सुनाई है। मैनी ऑफ द पीपुल टोल्ड मी द स्टोरी बिफोर दैट यू आर टेलिंग मी द सेम। जो स्टोरी तुम मुझे बता रहे हो ये मुझे बहुत लोगों ने बहुत बार बता ली है, ठीक है? तो ये मत समझना कि उन्होंने मुझे पॉजिटिव करने का ट्राई नहीं किया है। लेकिन डैरी जो है वह पॉजिटिव होने का नाम नहीं लेता है। मैं आपको बता चुका हूँ बार बार बच्चे, ठीक है? तो इतने में ही मिस्टर लैम डैरी से घर के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, कैसे कैसे है, कितनी दूर है, कितनी मील दूर है। तो वह उसकी सारी चीज़ों का आंसर देता है। फिर उसके बाद मिस्टर डैरी उससे हेल्प मांगते हैं। मिस्टर डैरी सेड दैट यू कुड गिव मी अ हैंड टू प्लकिंग द ग्रेप एप्पल्स। ये जो जंगली एप्पल्स यहाँ लगे हुए हैं इनको तोड़ने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। लेकिन डैरी क्या कहता है कि फर्स्ट आई विल आस्क माई मदर टू हेल्प यू टू गिव यू अ हैंड। पहले तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे अपनी मदर से पूछना पड़ेगा। डैरी जाता है अपनी मदर से पूछने जाता है, उसकी मदर कहती है हाँ, और तभी सेकंड सीन स्टार्ट होता है। कौन सा? सीन 2, सीन सेकंड स्टार्ट होता है। देयर आर 2 सीन्स इन द चैप्टर। सीन फर्स्ट दैट आई टोल्ड यू नाउ, दैट आई डिस्क्राइब नाउ, जो मैंने डिस्क्राइब किया है वो सीन फर्स्ट है। फिर सीन सेकंड स्टार्ट हो जाता है। सीन सेकंड में डैडी और उसकी मदर का कन्वर्सेशन है। डैडी की मदर उसको काफ़ी ट्राई करती है समझाने का। शी ट्राइड वेरी मच टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि वहाँ मत जाओ, ये मत समझो कि मैं उस आदमी को नहीं जानती, वैसे वहाँ जाने से रोकती है, मगर डैडी नहीं रुकता है। तो डैडी जैसे बताकर अपनी मदर से चला जाता है मिस्टर लैम के गार्डन में। तो वहाँ जाकर जब मिस्टर लैम के गार्डन में डैरी जाता है तो वहाँ जाकर वह मिस्टर लैम को ढूंढता है। लेकिन मिस्टर लैम ने डैरी की अब्सेंस में ही अपने एप्पल्स को प्लग करने का ट्राई किया, अपने एप्पल्स को तोड़ने का ट्राई किया था। और उन्होंने जो लेडर लगाई थी, जो सीढ़ी लगाई थी, वह फिसल गई थी, फिसल कर नीचे गिर गए थे। तो जैसे ही एज डैरी रीच द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम ही फाउंड द मैन लाइंग, ओके, वह उस आदमी को पड़े हुए पाता है। तो वह जाकर खूब उससे कहता है हाँ। लेकिन एक बात और, डैडी जब वापस जाता है अपनी मदर से कंफर्म करने, तो वह मिस्टर लैम को ये बता कर जाता है कि मैं आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता हूँ। तो डैडी स्टार्टेड क्राइंग। इट्स अ वेरी sentimental story started now. Daddy started crying that please get up Mr. Lamb, I'm here, please get up, उठिए मिस्टर लैम, मैं यहाँ आ गया हूँ, उठिए ज़रा। मगर लैम नहीं उठता है। दैट मीन्स ही इज़, बोलो बच्चों, ही इज़ डेड, वह मर गया। ओके, तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट। ये आपकी कहानी थी ऑन द फेस ऑफ इट की। सो दैट वाज द समरी आई टोल्ड यू टुडे। एंड ऑन द ब्लैक बोर्ड यू सी some difficult words and main characters and the name of the chapter, the writer name Suzanne Hill. Okay, and I hope you will be safe at your home now, as the school may be closed very soon. Now winter vacations are going on. Now I'm telling you that if as we get new application, I start to teach you the same application that I described now. जैसे हमें एप्लीकेशन मिलती है तो उस एप्लीकेशन पे हम आपको पढ़ाना जल्दी ही शुरू कर देंगे, आई होप। तो ये आपका
आज की समरी थी। मैं कल चैप्टर आपका एक्सप्लेन करूँगा। सभी को प्रेजेंट रहना है क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है बेटा, 10th और 12th क्लास स्पेशली। ठीक है, वीडियोज़ हमारे देखते रहना। हमारे साथ साथ और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, गूगल पर, और आपके पास बुक्स हैं और भी स्टडी मटेरियल्स हैं। आई टोल्ड यू टू बाई अ बुक, यू रिमेंबर ब्रेविया और लिटरेचर कंपेनियन, यू मस्ट बाई द बुक फ्रॉम द मार्केट, ओके, एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके जल्दी से इस बुक को खरीद लें। इससे आपके क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करें। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, इससे आपको एक आइडिया हो जाता है क्वेश्चंस राइट करने का, क्वेश्चन कैसे राइट करने हैं, क्या लिखना है, किस तरह क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं। यू फाइंड न्यू वर्ड्स, यू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी रीडिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके बेटा, तो जो मैंने बुक कही उसको जरूर खरीद लें। सो दैट वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। टुमारो I will be explaining you the chapter. Okay? So, take care. Bye now.